there's the last question. E-question है, how does ligament differ from the tendons, right? तो इसका जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट पेज पर है. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो. स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. लास्ट क्वेश्चन की कुछ लाइनें सेकेंड पेज पे है. This is last question E. How does, ma'am, I have a problem. Shivansh Gupta, minutes. Right? Last की 10 minutes पे होंगी. ठीक है. Last की 10 minutes. You don't have books. Please purchase the books. And one more thing I told you before. सबने ले लिया? Have you taken the screenshot, everyone? Yes, today's I think network problem. My voice is coming, right? Okay. Yes, one more important announcement. You have to pay your fees. Please submit your fees. March, April, May, June. March की जमा है तो April, May और June की 3 months. You can pay like this. Submit monthly wise also. And those who are already late in the fees, those who are 2019 की fees जमा नहीं है December, January की, pay it. Otherwise, I will not enter in the class. I announce the name also, Mayank. Day before yesterday, I announced the class. In the class, the names are also there. जिनके 2019 की भी जमा नहीं है. Yes, these answers, questions only brief answers, right? Students in the mind, yes, these are the short answers and long answers are left. Tomorrow I will show you the long answer also and the e-portal also, right? Okay. So you have done. You all have taken the screenshot. Tendons are the strong fibers that attach the muscles to the bones. If you are not understand, I am just reading out these lines. Tendons are strong fibers that attached the muscles to the bones. The last question की 2 lines left हैं जो मैंने second page पे लिखी है. Take a screenshot also. E question है ये, right? Everyone got it, everyone. Everyone has taken the screenshot and got it, right? Parchok, Oishi. Okay, concentrate everyone. I will start the next chapter. Yes, we have already started up. Yesterday we have done up. Why do we need oxygen? हमें oxygen की जरूरत क्यों होती है? Yesterday we have done. I am repeated this thing. Respiratory system. It works together with the circulatory system, right? So that fresh air getting rid of the impure air. Fresh air inhale करते हैं and the impure air we breathe out. हम बाहर निकाल देते हैं. That is exhale air. Right? I will ask the question later.
Now the topic is actually what happens, the mechanism of the inhale and exhale. The very in the simple way I will tell you. See this, see the screen. The respiratory system, everybody knows that कि हमारा breathing में help करता है. Respiratory system breathing में help करता है. See the screen. The process of respiration occurs in the lungs. First things should be remembered. All these points, these are the main points you have to remember. The process of the respiration. तो respiration का process है वो कहाँ पर होता है? Occurs in the lungs. And lungs, everybody knows that. Yes. Now see the next screen. Parts of the respiratory system. Right? Respiration जो होता है वो lungs में होता है. Then parts of the respiratory system is mouth, nose, and lungs. Obviously lungs also, because the gases exchange takes place in the lungs. In the previous chapter, we have already studied about it. Mouth and nose also. Mouth is also, through mouth and nose we take in air. Sometimes actually we have to take the air through the nose, but sometimes those who are having a problem, you can take a air through the mouth also. लेकिन हमें mouth से नहीं लेनी चाहिए. When you are breathing in, then you have to close your mouth, but mouth से भी ले सकते हैं. Through mouth and nose we take in air. Then see the next screen, respiratory system, breathing. हमारा breathing में help करता है. तो breathing क्या है? Breathing अपने आप में कुछ नहीं है. There is 2 steps. Means inhalation और exhalation को मिला करके breathing बोलते हैं. Inhalation में आप breathe in करते हो, exhalation में आप breathe out करते हो. So inhalation and exhalation together is known as breathing. Right? Inhalation में आप ऑक्सीजन अंदर जाती है और एक्सलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. तो इन दोनों को मिला करके हम बोलते हैं ब्रीदिंग. The term breathing is together inhalation and exhalation. Right? See the screen. Now see the next screen. Respiratory system inhalation. अभी मैंने आपको बताया कि ब्रीदिंग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को मिला करके होती है. नाउ सेपरेट व्हाट इज इनहेलेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. जब हम एयर को अंदर लेते हैं इन सिंपल वे, उसको बोलते हैं इनहेलेशन. एंड दिस एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अवर बॉडी. जब हम ब्रीद इन करते हैं, जिसको इनहेलेशन बोलते हैं, उस टाइम पे एयर क्या प्रोवाइड करती है? एयर से हम ऑक्सीजन ले लेते हैं. एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू अवर body. See, with the nose we can take the air and oxygen will go through the nostrils. हमारे दो नोज के होल से जाते हुए लंग्स तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच जाएगी. कैसे पहुंचेगी? पहले आप नोज से आप ब्रीथ इन करोगे, इनहेलेशन होगा, ऑक्सीजन नोज के नॉस्ट्रिल से जाती हुई फूड पाइप से होती हुई लंग्स तक पहुंच जाएगी. राइट? So this process is called inhalation. Now exhalation. It is very much clear the process of breathing the air out. Breathing out. हम air को बाहर निकालते हैं. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला अभी just now, breathing is togetherness of the inhalation and exhalation is called breathing. ठीक है? The process of breathing the air out is called exhalation, and this air expels carbon dioxide from the body. अब इस प्रोसेस में क्या होता है एक्सलेशन में कि हम कार्बन डाइऑक्साइड नोज के थ्रू बाहर निकाल देते हैं. राइट? आई विल टेल यू इन द एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आती है. ऑक्सीजन तो अंदर चलेगी लंग्स पे, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी इम्प्योर एयर, वो भी लंग्स क्या करता है, फूड पाइप से होते हुए बाहर की तरफ उसको आउट कर देता है. ठीक है? तो ये होता कैसे है? See this. See the diagram of the respiratory system. I am telling you, you have to listen and see the diagram also.
You breathe in oxygen rich or pure air from the atmosphere. आपने जब breathe in किया तो आपकी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से प्योर एयर जो है वो आपके अंदर चली गई. It reaches to the lung, nostril से होते हुए फूड पाइप से पास होते हुए then it reaches to the lungs, right? अब lungs में क्या होता है? There are the tiny, very thin, tiny air sacs in the lungs. छोटे छोटे से एयर सैक्स होते हैं. एयर सैक्स मतलब छोटे छोटे से होल होते हैं, राइट? एयर सैक्स होते हैं जिसमें एयर फिल हो जाती है. लंग्स में टाइनी, बहुत छोटे छोटे पतले पतले से थिन टाइनी एयर सैक्स होते हैं इन द लंग्स में. द इनहेल्ड एयर, जब आप इनहेलेशन करते हो तो ब्रीथ इन होती है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो एयर फिल अप हो जाती है इन्हीं एयर सैक्स में, इसीलिए इनका नाम रखा है एयर सैक्स. एयर फिल हो जाती है, इट मीन्स ऑक्सीजन फिल हो जाती है. दिस कॉजेज द लंग्स चेस्ट टू एक्सपेंड. इसकी वजह से लंग्स क्या करता है, जब एयर फिल हो जाती है छोटे छोटे एयर सैक्स में, तो हमारा जो चेस्ट कैविटी है, चेस्ट का जो पोर्शन है हमारी बॉडी का, वो एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, चौड़ा सा हो जाता है. दिस कॉजेज द लंग्स एंड चेस्ट टू, लंग्स क्या करता है, चेस्ट पोर्शन को एक्सपेंड कर देता है, राइट? फूल जाता है. अब you can see and you can feel it also if you put your hand, right? Yes, in this portion through the lung, on the chest portion you can feel it, or कि the chest will expand and then contract also. जब breathe in करते हो तो फूलता है, then उसके बाद उसका सिकुड़ता है. तो air sacs जो होती है वो air को fill up कर लेती है. अब क्या होता है, the next step is the sacs have very thin skin. जो सेक्स की जो स्किन होती है, जो सेक्स बने होते हैं, मतलब यानी कि छोटे जो होल टाइप, मतलब यानी कि यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जहां पर एयर फिल हो जाती है, तो सेक्स हैव वेरी थिन स्किन. उनकी जो स्किन होती है वो बहुत पतली होती है. देयर आर मेनी ब्लड वेसल्स. उनकी स्किन पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं उस स्किन पर. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पर जाकर के, क्योंकि सेक्स जो है लंग्स में होता है और लंग्स की जो स्किन होती है वो बहुत थिन होती है, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की छोटी छोटी पतली पतली वेसल्स होती हैं. यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है उनको, और एक्सचेंज में वो क्या ले लेती है, ऑक्सीजन. द ब्लड पिक्स अप द ऑक्सीजन. ब्लड पिक करती है ऑक्सीजन को एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर. अब वो लंग से होते हुए फिर से अगेन फूड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है. द ब्लड पिक्स अप द ऑक्सीजन. ये जो ब्लड वेसल्स हैं, एयर सेक्स की जो स्किन है वो बहुत पतली होती है जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं, जूम करके पिक्चर दिखाई गई है. एयर सेक्स हैं छोटे छोटे, टाइनी टाइनी, बहुत छोटे छोटे से, उनके अंदर ब्लड वेसल्स है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, जूम में ब्लड वेसल्स है. तो ब्लड वेसल क्या करती हैं, जब ऑक्सीजन अंदर आई लंग्स पे और एयर सेक्स में एयर फिल हो गई, तो एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और ऑक्सीजन पिक कर लेता है वो ब्लड वेसल्स. तो ऑक्सीजन को पिक कर लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया. सेम प्रोसेस से. द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और इम्प्योर. तो वो एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी वो इम्प्योर होती है, वो बाहर की तरफ निकाल दी जाती है ब्रीद आउट में, यानी एक्सलेशन थ्रू आउट द नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होती है. व्हेन यू एक्सेल, जब तुम एक्सेल करते हो, ब्रीद आउट करते हो, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चली जाती है. और ब्लड वेसल्स ने क्या किया, एयर सेक्स की जो स्किन थी उसमें ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स ने एयर के ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया उसको, राइट? उसको दे दिया और फिर वो वापस क्या करेगी, नॉस्ट्रल से होते हुए, फूड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाएगी. जब तुम एक्सेल करते हो, सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो ना, तो जब सांस लेते हो ब्रीथ इन बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं ब्रीथ आउट, राइट? Why do we need oxygen? The next topic is why do we need oxygen? हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी तक तो नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन पिक कर लेती है ब्लड वेसल्स एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देती है. तो why do we need the oxygen? We know that the digestive system breaks down. हमें मालूम है digestive system, we already studied that. digestive system क्या करता है, जब हम फूड लेते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसके न्यूट्रिशंस को वो ब्रेक डाउन, न्यूट्रिशन ले लेता है और फूड को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों में, सिंपलर फॉर्म में, राइट?
My voice is coming. Right, everyone is getting now. Everyone is getting. सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, you will tomorrow you will give a sign. Yes, diagram also. Yes. I will tell you in which question you draw the diagram, right? Okay. Okay, I will tell you. Now see the screen. I'm just complete this topic. I want to complete this topic. Why do we need the oxygen? हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी को and the human beings को? We know that the digestive system breaks down the nutrients in our body. In the yes, nutrition ले लेता है food से और उसको छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है कौन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब दे गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. अब ये जो न्यूट्रिशंस है वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाते हैं? दे गेट एब्जॉर्ब बाय द ब्लड. ब्लड क्योंकि ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में होती है, राइट? हमारे कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स में ब्लड वेसल्स हैं. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स मिले हमको, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए ब्लड वेसल्स के द्वारा यानी ब्लड के द्वारा एंड टेकन टू रीच द सेल ऑफ द बॉडी. अब ब्लड वेसल्स हर जगह है तो वो क्या करेगा? टेकन इज हर बॉडी की हर सेल तक पहुंचा देते हैं ब्लड वेसल्स. उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड वेसल्स बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देते हैं क्योंकि बॉडी किससे मिलकर बनी है? द स्मॉल यूनिट इज सेल. तो बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाती है, हर बॉडी पार्ट्स तक, मतलब हर बॉडी की हर सेल तक पहुंच जाते हैं. सिमिलर इसी तरीके से एब्जॉर्ब्ड ऑक्सीजन इन द लंग्स. अब लंग्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई थ्रू द एयर सैक्स ऑल्सो रीच एवरी सेल. जब ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंची, अब ब्लड वेसल्स ने क्या किया? उस ऑक्सीजन को भी बॉडी की हर सेल तक पहुंचाया क्योंकि सिर्फ लंग्स तक थोड़ी रहती है. हाँ, एयर सैक्स में एयर फिल हो जाती है, देन ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? एयर के ऑक्सीजन को पिक कर लेती हैं, पिक करके वो बॉडी के हर सेल तक उनको पहुंचा देती हैं. In the cells, oxygen acts as a digested nutrients to make the energy. अब उस सेल में जब ऑक्सीजन पहुंचती है, in the cell ऑक्सीजन एक्ट करती है on the digested nutrients. जब न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड में थे उससे साथ मिल करके रिएक्शन करते हैं और एनर्जी बनाती है. तो एनर्जी हमें तो चाहिए होती है ना हर काम के लिए. We need energy to do any work. If you want to play, work, study, walking, talking, in the every work we need energy. We need energy to do any work, right? हर वर्क के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? यहीं पर मिलती है. जब ऑक्सीजन बॉडी की हर सेल तक पहुंचती है तो क्या होता है? जब ऑक्सीजन पहुंच गई तो ऑक्सीजन ने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन की और एनर्जी प्रोवाइड करी. अब ये एनर्जी हमारे बॉडी पार्ट्स को मिल जाती है किसी भी काम को करने के लिए. We also need this energy to stay healthy also, है ना? हमें हेल्दी रहने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए, हर काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? एवरीथिंग इज कंट्रीब्यूटेड, राइट? हम जो फूड खाते हैं प्लस उससे जो ऑक्सीजन लेते हैं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. हमारे ब्लड वेसल्स ने इन द प्रीवियस पैराग्राफ आई टोल्ड यू, जो ब्लड वेसल्स ने एयर सैक्स से ऑक्सीजन ली, अब ये ऑक्सीजन बॉडी की हर सेल तक पहुंची तो उसके बाद उसने डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन की उस ऑक्सीजन में और एनर्जी दी. हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है यहाँ से किसी भी काम करने के लिए, इवन वर्क और प्ले. गॉट इट एवरीवन? ठीक है, चलिए. नाउ आई कैन आस्क द क्वेश्चन. I will tell you the diagram also, right? I explained. Now please unmute. Wait. Whatever I explain, you got it now. And question answers also. Yes. तो आपको आपको ये वाला बनाना है, आपको डायग्राम. मैम लॉन्ग. yes, I am showing you again. I am showing you this screen again. Take a screenshot. These are the short questions. And I can upload these question answer in the e-portal also. Right?
I will tell you the diagram. Take the diagram in the front of the question. आपको you can make the diagram. In the long questions, write a short note on the skull. Right? आपको एक skull का diagram बनाना है और वर्टेब्रेयर का बनाना है. वर्टेब्रेयर यानी कि डिफाइन द वर्टेब्रेयर, जहां पर मैंने लिखा है तो वर्टेब्रेयर आप बना देंगे. जूम वाली पिक्चर जो आपको दी हुई है बैकबोन की, वो वाली. राइट? Because these are very tough diagrams, you cannot make it by yourself. Tendons are the strong fibers that attach the muscles to the bones. In the long question, you have to draw the most of the diagrams. Right? Cartilage वाले में आप ये वाला question, ये वाला diagram draw कर लीजिएगा. Draw this diagram. Yes. Tendons. This figure you don't have. It is in your book, but it is not clear. So you can take the screenshot. Tendons. Make this diagram. It is very easy. Tendons. See this. It is not clear picture. It is not a clear diagram. So this diagram is clear. So you take a screenshot. So you make it this: bone, muscles, and tendons. Right? E-question. How does ligament differ from the tendons? How does Can take a screenshot. And ligaments, for the ligaments, you have to draw this. In the for the ligament, you have to draw this. Ligaments. Ligaments and tendons, you have to draw. Very short diagram are there. Ligaments के लिए ये वाला. It is in your book. Ligaments and tendons. Take a screenshot if you don't know. Okay. Now the time is running out. Ask your problem. Ask your problem. Raise your hands. I will ask one by one. Shivansh Gupta. Yes, Shivansh Gupta. मैम जो कल रिवीजन होने वाला मैम जो कल रिवीजन टेस्ट होने वाला है उसका लिंक मोबाइल पे आएगा, किससे पता चलेगा? हाँ, मोबाइल पे ही तो आएगा आपके. ये चैप्टर मोबाइल पे ही आएगा बेटा. मगर मैम पहला टेस्ट किसका होगा? There is a टेस्ट थोड़ी है, असाइनमेंट है ना. What? हेलो मैम क्या? यस मैम. ये बेटा असेसमेंट है ना, तो ये असेसमेंट. मैम असेसमेंट कोई .com ही दिख रहा है पोर्टल पे. It is not showing ना. यस मैम. Yes, tomorrow it will be. मैम पहला टेस्ट किसका होगा? Our bones and muscles, chapter 3. ओके मैम.
Yes, Natik. Yes, Natik. Ma'am, Yes. you will share lesson third exercise. हाँ, I have already shared the exercise of chapter 3. मैंने share कर चुकी हूँ. I have already shared. I am not. You did attend the class that day. आपने attend नहीं की थी. Yes, ma'am, नहीं की थी. So this is not good now. You have to attend daily class. मैम बार बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा था. नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा था. अच्छा, तो आप वहां पर बैठिए जहां पर नेटवर्क इशू ना हो. घर पे मान लो कहीं बाहर या पॉर्च एरिया में या आपके कोई भी ऐसा आंगन हो, वहां पर बैठ जाइए जहां पर आपको नेटवर्क अच्छा आता हो. मैम यस आरव. आरव, यस बोलिए. मैम डिफाइन वर्टी ब्रेक है, इसमें कौन सा डायग्राम बनाना है? डिफाइन वर्टिब्रेर आप नहीं बना पाओगे. लीव इट. टेंडॉन्स और लिगामेंट्स का बना देना. वर्टिब्रेर बहुत टफ है. छोटी छोटी स्मॉल बोन्स है. यू कैन नॉट मेक इट. ओके मैम. These are the very small bones, na? You can draw it easily. You are able to draw it, Arav? No, na? नो मैम. Right. तो ठीक है, अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताऊंगी. तो लॉन्ग क्वेश्चन में जहां पर जरूरत होगी जैसे स्कल की, तब वहां पर, और मसल्स की, राइट, और मूवेबल जॉइंट्स, मैं उनका डायग्राम बनवाऊंगी. जो भी मूवेबल जॉइंट्स है ना, लिसन एवरीवन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स एंड ग्लाइडिंग जॉइंट्स. सो उन सब का आपको बनाना पड़ेगा, राइट, इन लॉन्ग क्वेश्चन में. यस तोइशी. यस तोइशी. मैम यस. मैम वो बैकबोन वाला डायग्राम किस में बनाना है, कौन से वाले क्वेश्चन में? बैकबोन वाला नहीं बनना. वर्टिब्रेल करना. ओके मैम. दिस इज वेरी टफ डायग्राम बनाएंगे. और जो और ड्रॉ दिस डायग्राम. लिगामेंट ना, लिगामेंट Yes. वाला जो डायग्राम है वो बनाएंगे. मैम कौन से क्वेश्चन में बनेगा? कौन से क्वेश्चन में बनेगा? दैट इज ई क्वेश्चन. हाउ डज लिगामेंट डिफर फ्रॉम द टेंडॉन्स? दैट इज ई क्वेश्चन. Yes. You have book? You have book Toishi? Yes मैम. तो वो वाला क्वेश्चन है ना, हाउ डज लिगामेंट डिफर फ्रॉम द टेंडॉन्स. इसमें टेंडॉन्स और लिगामेंट दोनों ही ड्रॉ करेंगे ओके मैम. डायग्राम. ओके. ओके. ओके मैम. यस. यस. मैम यस. आप यस. मैम दोबारा सारे डायग्राम की फोटो दिखा देंगी? किसकी? विच वन? डायग्राम. डायग्राम की. ओके, ठीक है. You already take this screenshot now. You have already taken. Yes मैम. Okay. See the diagram, everyone. I am showing the screen. आपको ये वाला बनाना है. टेंडॉन्स ये वाला बनाना है. It is a clear picture. This picture is not clear in your book. I am showing. बनाना है. Listen, this is last time I am telling you. How does ligament differ from the tendon? How does ligament differ from the tendon? Questions. This two diagram you have to draw in this question. Got it? और ligament वाला ही. This one. Ligament. Ligament
राइट। ये लिगामेंट वाला डायग्राम है, ये लिगामेंट वाला डायग्राम है, दिख गया सबको? किस क्वेश्चन में डाला है? हाउ डज लिगामेंट डिफर फ्रॉम द टेंडन्स? आई एम रिपीटिंग इट 2, 3, 4 times. मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Or these all joints in long questions. Name the 4 kinds of तो ये वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आप अपने नेटवर्क को देखिए, बाकी सब बच्चों को क्लियर आ रही है, दे आर गेटिंग ऑल्सो। अभी कैसे आ रही है बेटा? अभी आ रही है ना? अभी आ रही है मेरी? काव्या, काव्या, who is saying my voice? Yes, students. Listen to me, everyone. सबसे the important announcement, you have to submit your fees, students. I am repeated, it's not good. मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग जो है फीस जमा कर दीजिए अप्रैल, मई और जून की, राइट? यू कैन सबमिट द फीस मंथली वाइज ऑल्सो, ठीक है? जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे वो अपनी फीस जो 2019 की भी जमा नहीं है, उन जिन बच्चों के मैंने नाम लिए थे, प्लीज फीस सबमिट कर दीजिए आप, राइट? यस चंचल, गुनिका, they are saying Harshit Gupta. Yes, Harshit Gupta. Yes, Harshit. मैम Yes. मैम मुझे साइंस की थर्ड चैप्टर की मुझे बुक एक्सरसाइज और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चाहिए इस थर्ड चैप्टर के। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन से मैंने कराई नहीं अभी।